I hope you are doing well during the lockdown period and you are enjoying your lockdown by using some of the technical works, some of the classes, many things you are doing. This is Virendra, your IT instructor. I am here to give you some of the most important information about your employability skill. Basically, this video is for class 11 and class 11 student will learn here many things. So first of all, I just want to welcome all the students, all the participants to my YouTube channel, and after welcoming all the students, without wasting any of the time, I just want to start this video. So let's show you the next slide. Yes, right now we are going to study about part A, that is your employability skill, and we in this video we are having unit 1, that is communication skill. So what are the content about this? Let me show you. These are the contents that we are going to study here, and we will try to finish it. That is session 1, that is introduction to communication, number 2 verbal communication, number 3 non-verbal communication. I will try to finish it out these 3 sessions in this video, and rest will come in another video. Okay students, now I'm going to start session number 4, and your session number 4 is pronunciation basics. So before starting off this session, first of all we need to understand what is pronunciation is. As you know that pronunciation is the way that you say a word or language is spoken. I repeat for you, pronunciation is the way you say a word or language is spoken. कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप शब्दों को या भाषा को आप बोलते हो आप. If you don't know to say the words correctly and other cannot understand, कहने का मतलब क्या हुआ, if you don't know to say the correct word, मतलब आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं जानते हो आप, तो सामने वाले को किस तरीके से आप समझाओगे, आप किस तरह से अपनी बात बताओगे आप. तो आज हम इस सेशन में यही समझने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉमन साउंड्स होते हैं जिसका कि हम अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, अपने इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं. और देखा जाए कि ये जो प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स जो सेशन हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल का सबसे मेन पार्ट है ये. आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, तो इंटरव्यू देते समय हम अपने एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को बहुत ही क्लियरली और स्पष्ट तरीके से हम उनको बताएंगे, उनसे बात करेंगे हम, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट लूजिंग आवर कॉन्फिडेंस. सो इन दिस वी आर गोइंग टू say a common word with a correct pronunciation. So let me scroll down so that have a more detail about this topic. So to communicate well when you speak, you need to know how to pronounce a word correctly. यानी कि अगर आप किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो आप, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शब्दों की क्या है. Correct pronunciation will help you to express yourself in a clear and confident manner. Yes, it is absolutely correct. कि जब आपको correct pronunciation पता है, इसका मतलब आप बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा है. सामने वाले से बात करने में किसी तरह की कोई एजिटेशन नहीं होगी. So now coming to the next part. And your next part is speaking properly, means how we are going to speak properly. So let me scroll up so that you can have a clear view of each and everything. Okay, a common mistake
that people makes is when they are not able to pronounce word. कहने का मतलब ये है कि हम कुछ गलत शब्दों का प्रोनाउंसिएशन गलत करके हम कॉमन मिस्टेक्स करते ही रहते हैं. हम कोई भी हो, आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना होगा कि वर्डों जो शब्द हैं उन शब्दों का जो प्रयोग है वो प्रयोग बहुत ही सही तरीके से हो. You should have a proper pronunciation in each and every word. Therefore, it is very important to clear and correctly pronounce the word. Now, I am going to give you some words and you have to speak loudly in a correct pronunciation. Your, word, chair, wear. Okay. Now I am going to give you some of the common or little bit matching words. Now that is fall, fail, sail, sail, tail, tail. अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड आपको मिले जो बिल्कुल स्पेलिंग में डिफरेंट तो जरूर है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में सेम है. ओके. नाउ व्हाट यू हैव नोटिस हियर, you have noticed here the words which have similar spelling are pronounced differently. यानी कि जिनकी स्पेलिंग सेम है उनको हम डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं. ये ऑलरेडी आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपने पढ़ रखा है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक स्किल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं. यहाँ तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है. इन केस आप किसी कंपनी में किसी अच्छी जगह इंटरव्यू देने जाते हो आप और आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है, जाहिर सी बात है वो आपको नहीं रखेंगे. सो दिस इज द वन काइंड ऑफ स्किल सब्जेक्ट एंड यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके. समटाइम विच हैव डिफरेंट स्पेलिंग मे बी प्रोनाउंस इन द सेम. यानी कि दो शब्द हैं, दोनों का अगर स्पेलिंग एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट तरीके से हो सकता है. लेकिन इसका उल्टा सोचें कि डिफरेंट स्पेलिंग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है. ओके. इस चीज़ को हम नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे. नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फोनेटिक्स. फोनेटिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ साउंड that we make when we speak. यानी कि हम फोनेटिक्स को समझने जा रहे हैं, स्टडी ऑफ साउंड को समझने जा रहे हैं. और यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हम यहाँ पर किस तरह से बोलते हैं, अपने साउंड को कैसे निकालते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं. वी यूज़ साउंड टू स्पीक. यस, अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है बिना साउंड के वो बोला नहीं जा सकता. और कई तरह के शब्दों का जो मेल होता है वो अलग अलग अक्षरों का होता है और अलग अलग अक्षरों का अलग अलग साउंड भी होता है. तो इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे हम. लेट मी स्क्रॉल डाउन, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. यस, आई एम गिविंग वन एग्जांपल हियर. इन दिस नोट्स द एग्जांपल गिवन इज डॉग. एज यू नो दैट डॉग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 letters DOG. ओके. नाउ व्हेन वी स्पीक आवर this word, so we have to speak like this: dog, og. When you combine these 3 things, it becomes dog. In the same way, cat. Okay, CAT, cat. 3 letter combination, it becomes cat. So we have to combine 3 things: ko, then a, and then t. Cat. So as you know that there are 26 letters in the alphabet. आप सभी जानते हैं 26 लेटर हो सकते हैं, लेकिन 26 लेटर तो ज़रूर है लेकिन उनके साउंड्स 26 से ज़्यादा हैं. उसके मिल करके जो साउंड्स बनते हैं 26 लेटर को मिला के उनके साउंड्स बहुत सारे बनते हैं, 26 से ज़्यादा ही होंगे. दैट्स वाई वर्ड्स स्पेलिंग डज नॉट ऑलवेज मैच इट्स प्रोनाउंसिएशन. कहने का मतलब क्या हुआ कि जो शब्दों की स्पेलिंग बात कर रहे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन मैच कभी नहीं करेगी. Okay, let's have an example about I'm taking one letter that is A and I'm giving some examples here and having what different sounds for A. यानी A लेटर को हम किस तरह से डिफरेंट साउंड की तरफ निकाल सकते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए, कैट, एप्पल, बैग. यहाँ पर A का इस्तेमाल हुआ है. नेक्स्ट देखिए सेकंड रो में
कार, फास्ट, पार्क। यहाँ पर देखिए हम ए को डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं। एक और देखते हैं हम, कॉल, बॉल, सॉ। यहाँ पर देखिए एक अक्षर है यहाँ पर, और एक अक्षर के 3 वे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। ओके, सो व्हेनेवर यू आर giving any interview, okay, you are live with any of the video, at that time you have to make sure that your pronunciation should be very good and clear. Now let me give you a detail about types of sound. How many types of sounds are there? Let me give you details about the same. As you know that we have now seen how many letters are there in alphabet. It is not enough to exactly match many different sounds we make when we speak. मतलब क्या हुआ कि जिन लेटर्स को हमने देख लिया, जिनका हमने इस्तेमाल कर लिया, और अभी हमने ये नहीं सीखा कि उनके डिफरेंट तरीके के साउंड्स क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको अब बेसिक टाइप्स ऑफ साउंड बताने जा रहा हूँ। मैं वहाँ पर हम कुछ अच्छी तरीके से कुछ डिफरेंट टाइप्स के साउंड पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। Okay, so now I am coming to the basic types of sound. Let me scroll down. Yes, I think you are able to see each and every content here. Now, right now you already know that there are 3 kinds. Number 1, vowels, as you already know that. Consonant, this is also you know that. Third one, diphthongs. Diphthong means combination of sound of 2 vowels. Means whenever you combine 2 vowels, then it become diphthongs. So let me have a detail about vowels. As you know that 5 kinds of vowels are there: A, E, I, O and U. But there are 12 vowel sounds are there. Yes, 12 vowel sounds are there. This means that most vowel can be pronounced in a different way. Let me give you the example. If you pronounce the letter I in the word BIT, that is bit. Okay, यहाँ पर I का इस्तेमाल किया गया है। Clear? Now, अब हम बात करते हैं diphthong की। यहाँ पर 2 तरह के 2 अलग-अलग vowels को हमें combine करना है। कैसे? Example देखते हैं इसका हम। The sound O-U, O का अलग साउंड है, U का अलग साउंड है, दोनों को हमने मिला दिया। तो जैसे HOUSE, हाउस, यहाँ पर हाउस में देखिए O और U के अलग अलग साउंड, दोनों को मिला करके एक साउंड आपका बन गया यहाँ पर। दैट इज कॉल्ड डिप्थोंग। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जानते हैं आप कि कॉन्सोनेंट आपका जो होता है वो आपका वोवेल्स और डिप्थोंग्स को छोड़ करके जो हमारे बच जाएंगे वो हमारा कॉन्सोनेंट है हमारा। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। वी यूज कॉन्सोनेंट साउंड टू से द लेटर P and T। ओके, यानी कि हम यहाँ पर 2 अपने लेटर्स को ले लिया जो कॉन्सोनेंट हैं, P और T को ले लिया, इन दोनों को मिला करके हमने एक शब्द लिया पॉट, आप उसको बोलेंगे पॉट। तो यहाँ पर देखिए आपका O आपका यहाँ पर एक तरह का वोवेल है, और हमने यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट को लिया है, दोनों को मिलाया, तब आपका एक शब्द बना जिसको हम पॉट कह रहे हैं यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक जो टाइप्स है हमारे साउंड्स की वो आपको समझ में आ गया होगा। Now coming to the next page, and we have the more introduction, more clarity about this. आप इस समय जो टेबल 1.9 आप देख रहे हैं ये डिफरेंट साउंड्स के लिए है। ये यहाँ पर आपको कई तरह के आपको बोलने का तरीका और बोलने का वे आपको सिखाया जाएगा। ओके, अब आप देखिए पहले कॉलम पे देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग। अब यहाँ पर लॉन्ग में यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रहा है ये डबल ई का जो साउंड है ये आपको देखेगा कि यहाँ पर कैसे होगा, यानी कि हमें यहाँ पर डबल ई के लिए एक लॉन्ग साउंड हमें निकालना होगा। कैसे? स्लिप, कीप, फील, फील, कीप, स्लीप, इस तरीके से हमें आवाज़ निकालना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अब आई के लिए अगर सिंगल आई आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप शॉर्ट यानी कि छोटा सा आप आवाज़, बहुत कम आवाज़ निकालेंगे, एक हल्का आवाज़ निकालेंगे। कैसे? स्लिप। अब यहाँ देखिए आई का साउंड बहुत हल्का सा है। टिप, फिल, यू का साउंड क्या होगा, ये भी शॉर्ट में ही होगा। कैसे?
यू का साउंड आपने यूज किया है डबल ओ, लेकिन आप बोल रहे हैं यू के साउंड के लिए। यहाँ पर डबल ओ यूज कर रहे हैं, लेकिन आप साउंड किसका निकालेंगे? यू का। बुक, पी यू टी पुट, एफ डबल ओ टी फुट। अब लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए कुछ और डिफरेंट देखिए, यहाँ पर वोवेल साउंड्स के लिए यहाँ पर अब आपको लॉन्ग आवाज़ आपको निकालनी होगी, लंबी आवाज़ निकालनी होगी आपको। बूट ग्रुप टू, बूट ग्रुप टू, इस तरह से लंबी आपको आवाज़ निकालनी होगी। अब हम देखते हैं कुछ डिफ्थोंग के कुछ साउंड्स देखते हैं कैसे निकलेंगे। ओके, अब हम देखते हैं पहले ई और ए के लिए किस तरह के साउंड्स निकलते हैं। अब यहाँ ई अलग वोवेल है, ए अलग वोवेल है, दोनों को कंबाइन किया गया, डिफ्थोंग बन गया आपका। जैसे नियर, डियर, हियर। अब ए और ई के लिए देखिए, यहाँ भी दो अलग अलग आपके यहाँ पे डिफ्थोंग्स है आपके हैं, लेट, केक, गेम। अब यहाँ पर देखिए ई और ए एक जगह है, यहाँ पर ई और ए एक जगह नहीं है, अलग अलग सीक्वेंस में यहाँ पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलम में ओ और ए, इसके साउंड कैसे निकलते हैं। बोथ यानी ओ की मात्रा के लिए जैसे निकालते हैं आप, लोन, मोस्ट। नेक्स्ट वन इज ओ यू के लिए देखते हैं, माउथ, लंबा थोड़ा साउंड है यहाँ पर, काऊ, क्लाउड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जिसमें कि वोवेल और डिफ्थोंग के साउंड्स किस तरह के हो सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सोनेंट के साउंड्स किस तरह के हो सकते हैं। अब हम देखते हैं प, प यानी पी, पी के लिए देखते हैं कि कैसे साउंड निकलता है। पेन, रिपोर्ट, स्टॉप। टी के लिए देखते हैं ट्रेन, स्टोरी, पुट। के लिए देखते हैं बुक, कोल्ड, म्यूजिक। लॉ के लिए यानी एल के लिए देखते हैं लुक, प्लेस, स्कूल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आपको करना क्या है, ये भी जो आपको इस सेशन में जो प्रोनाउंसिएशंस के स्किल्स बताने की कोशिश की गई है, आप इसको जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। सो आई होप each and every point is very much clear to you. Okay students, thank you so much for being with me from starting till the end of this video, and I just want to say thank you so much for watching me, and please don't forget to like, to subscribe, to comment on my YouTube channel, and please share your valuable feedback. This is the end of current session, and we'll meet in next session very soon. So thanks a lot once again.